सो ये एक टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट तो है, नॉट ओनली फॉर रिसर्च बट फॉर आवर लाइफ ऑल्सो, day to day life. And somehow this subject or this topic is rarely taught and quite difficult to practice also in a day to day life. So we will spend some time, and there are certain what you call contents in the uh, presentation which are also useful from the exam point of view and also from the your thesis point of view, while you will be actually writing your own thesis and conducting experiments and research. Okay, so let's start. Ethics is a branch of philosophy. Moral philosophy हम जिसको बोलते हैं. So morality and ethics are the two sides of a one coin. The problem with ethics is that it cannot be taught, but only can be practiced. Very rarely you will see now, of course, there are certain courses in BBA and MBA, their curriculum have ethics topic, but I'm not sure whether BCom, BSc, MSc में ये topic पढ़ाया जाता है या for that matter engineering में भी पढ़ाया जाता है क्या? I'm not sure, ये शायद पढ़ाया नहीं जाता होगा. Why ethics have become all of a sudden important? Because with the rise of technology, आप देखिएगा अगर आपके अंकल या फादर या जिन्होंने पहले पीएचडी किया होगा तो वो टाइपराइटर पे टाइप किया था, वो लाइब्रेरी में जाके उन्होंने किताब ढूंढी थी. आज कई सारी चीजें ऑनलाइन, कई क्या मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑनलाइन टुडे. तो वो एक रिसर्च के एंगल से प्लेगरिज्म का एक वो खतरा बढ़ गया है. Secondly, the world in which we are living today, we are living in an information age, and uh, the generation of people which is coming in the society are of very short-term oriented. They want quick gains in a short-term period. So morality and नैतिकताला कुठतरी धक्का पोचतोय आणि म्हणून हे सगळे स्कॅम घोटाळे वगैरे सगळे होत आहेत. हे आधी होत होते, आता त्याचं मॅग्निट्यूड वाढलंय म्हणून कुठेतरी बिझनेस वर्ल्ड मध्ये इथिक्स शिकवावं या ऑब्जेक्टिव्हनी इथिक्स हा आणला गेला. आप अगर कभी फॉर्चून 500 कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हो बड़े पोस्ट के लिए, तो आपका एक इथिक्स का टेस्ट लिया जाता है और वो टेस्ट अगर आप पास हो गए तभी आपको आगे इंटरव्यू के लिए वो लेके जाते हैं, वरना आपको वहीं से निकाल देते हैं. सो lot of malpractices were seen into business world, especially after 1990, and that's where the ethics became very, very important. Today we will talk specifically from the research point of view, how we should inculcate these protocols so that we would try to be on the right side of the equation as far as our own research work is concerned. Now, the problem with ethics is that, second problem is that any person who is ethical can become unethical also. And any person who is unethical can be transformed into ethical also. याचं बेस्ट उदाहरण है वाल्या. वाल्या कौन था? वाल्या चोर था. सो वाल्या का वाल्मीकि बन गया. तो वैसे ही आसाराम बापू का भी कुछ तो हो गया. आसाराम बापू अभी अंदर है. सो both way transformation is possible. There is no such state that a ethical person will remain ethical for rest of his life. It is a very ideological argument, and hence we have to practice it 24/7. And what can be right for me can be wrong for somebody else, and what can be wrong for somebody else can be right for me. So it is a very subjective matter or subjective topic. Hence it is quite difficult to teach, but we must practice it. I am fortunate to have
appointed as a faculty to teach this subject to very senior bureaucrats in government, and all the 249 UPSC candidates who clear or who get inducted into IS cadre. I get a chance almost every year or alternate year to teach them about the governance, सुशासन आणि नैतिकता, उसके ऊपर बात करने का मौका होता है. And being in a management, I was compelled to adopt to this principle to certain extent, which was necessary back then. Now, when it comes to the research itself, okay, it is seen that majority of scientists or majority of researchers who are conducting research, they do not have any formal training in research ethics. This is a case all across the world. Okay, the student or the researcher themselves are very poorly mentored in the research ethics. Okay, and the faculty who were trained by same methods may be lacking into an ethical education. So, as such, आपको आपके गाइड ने कभी इथिक्स के बारे में नहीं बताया होगा, उनको भी उनके गाइड ने कभी नहीं बताया होगा, और ये प्रोटोकॉल जो है ये दुनिया में सब जगह चल रहा है. Now, having said that, there is what you call conventional wisdom, which is handed down from mentor to student into various laboratories. But problem is that there are no standardization. It differs from laboratory to laboratory, differs from research institute to research institute. So ये protocol जो दिए जाते हैं, these are so-called fluid protocol. They are not standard protocol कि आपको ये नहीं करना है. ऐसा कोई standard framework ethics का research के लिए दुनिया में कहीं भी नहीं है. Now, these are the 6 principles of ethics. They are very important from your exam point of view. Now, the entire sphere of ethics revolves around these 6 principles. And these 6 principles are particularly drafted for academic research, or the research we can say, not academic but research itself. So ये research के लिए 6 principles को ड्राफ्ट किया गया है. तो among these, the first and foremost is the truth. अब मुझे बताइए, what is so unique about the truth? क्या है ट्रूथ की खासियत? काय याचं वैशिष्ट्य, काय याचं? Sir, it means we are expressing only those things which are existing and not the inexisting things. और जो है सही में जो है उसी को हम बता रहे हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई मिथ्या कथन नहीं है. Okay, so fact, मतलब representation of the fact. Yes, yes. Okay, fine. Or any other inputs? Anything about truth? No manipulation. Truth. No manipulation. Fact. So being honest. Fact. Okay. What else? Anything else? Anything? Okay. So first. Okay. So the first and foremost, whatever you said is correct. The first thing so unique about truth is that it is absolute. That means there is nothing other than the truth. So you can't say that Abhilash is 80% true and Anjali is 85% true. No, it is absolute. It is either true or it is false or incorrect, right? So it is absolute. That is first. Second, truth always come out. आप उसे कितना भी छुपाने की कोशिश कीजिए, सच्चाई ये बाहर आके रहती है, मतलब रहती है. ये आप लिख लीजिए, ये ध्यान में डाल दीजिए. आपको अगर लग रहा होगा कि मैं चुपके से कुछ कर रहा हूं जो किसी को मालूम नहीं होगा, हो सकता है,
कई लोगों को लगता है कि वो जो कर रहे किसी को मालूम नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है, पर एक दिन जब ये बाहर आएगा तो उस वक्त आपको ज्यादा डैमेज करेगा, क्योंकि उस वक्त आप बड़े पोस्ट पे होगे, शायद आप एक अहम व्यक्ति होगे या और कुछ हो सकते हो. सो इफ वी अंडरस्टैंड दैट ट्रूथ इज ऑलवेज कम आउट, देन we may deter to do the wrong things or inappropriate things. इसीलिए इंडिया इज द ओनली कंट्री एज फार एज आई नो जिसके एम्बलम पे लिखा है सत्यमेव जयते, ट्रूथ ऑलवेज विन्स. ये लिखा है, सत्याचा नेहमी विजय होतो. सो ये जो धारणाएं हमको हमारे एजुकेशन सिस्टम से, हमारे फैमिली मेंबरों से, हमारे रिश्तेदारों से, पीयर से जो डाली जाती है, कि हमें हमेशा सच्चाई की राह पे चलना है, तो वो एक हमारे कल्चर का, अपब्रिंगिंग का एक वो पार्ट है. इवन इन द ओल्ड डेज, whatever movies we used to see or TV serial we used to see, उसका निचोड़ वही होता था कि सच्चाई की जीत होगी और बुराई की हार होगी. और वही हम रामायण और महाभारत और ये सब चीजों में देखते हैं, और इसीलिए हम दशहरा, दिवाली ये सब चीजें मनाते हैं. बट आज जो जनरेशन हम देख रहे हैं, वो जनरेशन में कहीं ना कहीं एक गैप आई हुई है. दुनिया में सब जगह आई हुई है. इवन इन अ emerging society like India, we are facing too much pressing issues relating to all these issues as far as the truthfulness is concerned. इसीलिए आप देखिए in urban cities like Pune, Bangalore, Delhi, the divorce rate is very very high. Again, उसका truth और उससे कोई संबंध नहीं है, but one of the issues to the rising divorce rate is something related to the adultery or whatever we may call it, other than several other issues. Okay, so truth, it comes out. अब अगर आपकी ख्वाहिश है कि आप एकेडमिक फील्ड में या यूनिवर्सिटी के फील्ड में वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर, मैनेजमेंट काउंसलर या कोई बड़े पोस्ट पे जाना चाहते हो, तो आपको आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्लीन या इथिकल रखने का है. व्हाई? Because today we are living in an information age. Under Right to Information Act, any details of any person sitting on a higher position can be recalled and can be scrutinized. So मान लो अगर किसी ने पीएचडी के थीसिस में बहुत बड़ी गड़बड़ी की है और वो आज एक बड़े पोजीशन पे है, तो उसका पॉलिटिकल स्टेलमेट करने के लिए कोई ना कोई उसका पूरा डेटा निकालेंगे और फिर वो पब्लिसिटी, उसकी बैड पब्लिसिटी होगी. इसका एक जो एग्जाम्पल है रिसेंट ईयर्स में, 3-4 साल पहले का है शायद, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की एक मैडम थी जो वाइस चांसलर बनी. She was a female vice chancellor of Pondicherry University, and after taking a charge, she floated some tender for construction. So the student union, they believed that there are some irregularities in that tender. So they started protesting and they said that ये tender को आप खत्म कीजिए, scrap the tender. So she didn't listen to the students. So what student did, they took her biodata under the Information Act. वाइस चांसलर बनने के लिए आपको एक 60-70 पन्ने का एक बड़ा बायोडाटा देना पड़ता है. वो बायोडाटा उन्होंने निकाल लिया कहीं से, और वो बायोडाटा पे जो भी लिखा था स्टूडेंट लोगों ने क्रॉस चेक करना चालू किया. सो वन ऑफ द थिंग दे केम अक्रॉस वाज हर डिग्री. उसने उसके बायोडाटा पे लिखा था उनके पास श्रीलंका की किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री थी. तो स्टूडेंट लोगों ने वो यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट किया. वो यूनिवर्सिटी ने लेटर दिया कि हमने ऐसे ऐसे व्यक्ति को कोई डिग्री दी नहीं है. सेकेंडली, उसी यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट था, उसने इनको एक पेपर दिया था रिव्यू करने के लिए. तो इन्होंने वो पेपर अपने नाम पे पब्लिश किया था जर्नल में, और वो जर्नल का रेफरेंस बायोडाटा में था जिसमें उन्होंने अपना खुद का नाम डाला था. तो वो स्टूडेंट ने वो भी पेपर निकाल लिया. उसने बोला कि ये मेरा पेपर है और ये मैडम ने मेरी बिना परमिशन लिए अपने नाम पे उसको छाप लिया है. और 2-3 मुद्दे लेकर ये लोग गवर्नर को रिप्रेजेंट किए और गवर्नर ने उसी रात को
वो मैडम को डिसमिस किया गया ऑन दी इथिकल ग्राउंड। तो सच्चाई बाहर आती है और आप जितने बड़े पोस्ट पे जाना चाहते हो उतनी आपकी सच्चाई लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे और आपको तकलीफ दे सके। इसका और एक एग्जाम्पल है वो स्मृति ईरानी जो यूनियन एचआरडी मिनिस्टर थी पिछले कैबिनेट में और अभी कौन सी मिनिस्टर है। तो 2014 में उसने जब अपना इलेक्शन का पर्चा भरा उसने कुछ लिखा था बीएससी या और कुछ डिग्री लिखी थी। जब वो चुन के आ गई तो लोगों ने देखा उसके पास कोई बैचलर डिग्री नहीं है। तो वो तो एचआरडी मिनिस्टर थी, मतलब जो आईआईएम और आईआईटी को कंट्रोल करती वो मिनिस्ट्री में थी वो मैडम, जिसके पास बैचलर डिग्री नहीं थी। 2019 के चुनाव में उन्होंने अपने एफिडेविट पे या डिक्लेरेशन पे लिखा ब्रैकेट में करस्पॉन्डेंस में वो कर रही है, मतलब हुआ नहीं आता। तो पब्लिक फिगर को भी प्रेशर में आके आजकाल सगळी माहिती कोणालाही कुठेही मिळते, कुठेही मिळू शकते तुम्हाला। त्याच्यामुळे लोकांना तुम्हाला खोटं बोलता येत नाही आणि सच्चाई जो है वो बाहर आती है, मतलब आती ही है। सेकंड प्रिंसिपल है फ्रीडम। नाउ फ्रीडम आपको यूनिवर्सिटी ने और आरआरसी कमिटी ने आपको रिसर्च करने का फ्रीडम दिया हुआ है। आपको 5 साल का समय दिया गया है। आप जिस तरीके से चाहो उस तरीके से आप आपका समय इस्तेमाल करके आपका पीएचडी का थीसिस कंप्लीट कर सकते हो, रिसर्च वर्क कंप्लीट कर सकते हो। फ्रीडम इज गिवन टू यू। दे वोंट आस्क यू एनीथिंग एक्सेप्ट दी पीरियोडिक रिपोर्टिंग, जो भी 6 महीना या 1 साल जो भी आपका यूनिवर्सिटी का नाम है आपको उतना देना है, अदरवाइज nobody will question you. So basically you are given the freedom. Third one is a responsibility. Now freedom is only given to the responsible people. Freedom is not given to the irresponsible people. से आपके घर में आपकी लड़की है और आपके घर का नियम है कि रोज रात को शाम को 7 बजे से पहले सब मेंबरों ने घर में हाजिर होना अनिवार्य है, और आपकी लड़की वो पिछले 8 साल से करते आ रही है। और एक दिन वो बोलती है मम्मा मुझे मेरे दोस्त के बर्थडे में जाना है, तो मेरे को रात का 10 बजेगा, कैन आई गो? तो यू शुड लेट हर गो। व्हाई? बिकॉज ऑल दीज इयर्स शी वॉज रिस्पॉन्सिबल, hence she deserved the freedom. So freedom and responsibility are interrelated. Only responsible people are given the freedom. So you as a PhD candidate are deemed to be assumed as responsible by the RRC and the university. So you must make use of your freedom to do a quality work and not to cut corners, not to plagiarize, not to do illicit things and complete your research. That is not expected or demanded from you. The fourth principle is a integrity. This is a little bit what you call difficult to explain, but integrity म्हणजे एकनिष्ठता। एकनिष्ठता एकनिष्ठता म्हणजे एकलव्य जो था उसने द्रोणाचार्य जी का पुतला बना के जो धनुर्विद्या सीखी, दैट वाज ए इंटीग्रिटी, एकनिष्ठता। सो आपने जो सिनॉप्सिस जमा किया था और जो आरआरसी ने अप्रूव किया हुआ है, आपको आपका रिसर्च इंटीग्रिटी से करना है। और फॉर दैट मैटर एनी रिसर्च दैट यू विल डू इन द फ्यूचर has to be done in accordance with the principle of integrity, eknishtata. The fourth principle is fifth principle is professionalism, व्यावसायिकता। आपके थीसिस में या आपके रिसर्च वर्क में प्रोफेशनलिज्म का रिफ्लेक्शन होना अनिवार्य है। इसका मतलब इट शुड बी वेरी वेल रिटन, with no errors, very well represented, all things must be cited properly, all sources must be quoted respectively, and it should not have any loophole as far as professionalism is concerned. म्हणजे तुमचा प्रबंध तुमच्या व्यावसायिक कुशलतेचा एक नमुना असला पाहिजे, त्या दर्जाचा तो
असला पाहिजे. And the last principle is a collaboration. Since now we are into a information age, so we tend to work cross border just by using a technology and by collaborating with other research area. जैसे आपने ब्रेक के पहले बोला था कि बॉटनी और जूलॉजी वाले भी कोलैबोरेट कर सकते हैं इंटरडिसिप्लिनरी में. So while collaborating, we must be faithful and truthful towards our collaborating agency or collaborating partners. उसका मैं आपको आगे चल के एग्जाम्पल दूंगा. Because if we are not collaborating in the sincere way, then the chances of that collaboration failing apart are very, very high, and ultimately it will suffer the research outcome. तो ये जो 6 प्रिंसिपल है, ट्रूथ, फ्रीडम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनलिज्म एंड कोलैबोरेशन, ये रिसर्च के लिए कहीं ना कहीं हमारे काम में आते हैं, राइट. सो नाउ वी विल सी द इथिकल स्फीयर. द प्रॉब्लम विथ इथिक्स ये है कि आप जो अनइथिकल काम कर रहे हैं उसके लिए गवर्नमेंट आपको कोई पनिशमेंट नहीं देती. हमारे यहाँ पनिशमेंट देने के तौर तरीके ये बहुत अलग है. मतलब हमारा जुडिशियल सिस्टम तो ये और एक अलग मिसाल है दुनिया की. बट एनीवे कई एक्टिविटी है जिसको गवर्नमेंट मिसकंडक्ट नहीं बोलती, बट वो रिसर्चरों के लिए अनइथिकल मानी जाती है. क्योंकि हम रिसर्च कर रहे हैं, ऑल्दो इट इज नॉट मिसकंडक्ट पर से, क्योंकि गवर्नमेंट का उससे कोई लेना देना नहीं है. गवर्नमेंट केवल देखती है आपने क्राइम किया है नहीं किया. बट रिसर्च के इथिकल स्फीयर में उसको हम अनइथिकल कैटेगरी में डालते हैं, अनैतिक. सो म्हणजे काय, म्हणजे डेविएशन. सो अगर कोई पाथ आपके लिए ट्रैक किया गया है और वो पाथ से अगर आप डेविएट होते हो तो हम उसको अनइथिकल कैटेगरी में डालेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आप टीचर हो, आपको रोज 45 मिनट का क्लास लेना है. आप ऑन एन एवरेज मंथ में, एक महीने में आप केवल 38 मिनट का ही क्लास ले रहे हो. किसी दिन ज्यादा ले रहे हो, किसी दिन कम ले रहे हो, बट ऑन एन एवरेज आप 38 मिनट का ले रहे हो. सो दैट इज अ डेविएशन फ्रॉम द प्रोटोकॉल अप्रूव्ड बाय योर इंस्टिट्यूट. सो यू आर अनइथिकल. बरेचदा विद्यापीठातल्या फॅकल्ट्या फिरत असतात. एचओडींना ते सांगतात मी या मीटिंगला चाललो, त्या मीटिंगला चाललो. आता एचओडी मागे खूप काम असतात, एचओडी सगळ्यांना शोधत नाही. मग ते सुद्धा डेविएशन फ्रॉम दी प्रोटोकॉल. वो इट इज अनइथिकल बिहेवियर. त्याच्याकरता शिक्षा नाही होत. सीआरई कोणी कोणाचा खराब नाही करत, पण अनइथिकल. बट व्हेन इट कम्स टू द रिसर्च, that deviation means publishing the same paper in 2 different journals without telling the editor, or submitting the same paper to 2 different journals without telling the editor. ये सब लोग करते हैं. आप जब एब्स्ट्रैक्ट 5 जर्नल को भेजते हैं तो 3 जर्नल आपको बोलते हैं कि भैया पेपर भेजो. आप तीनों जर्नल को आपने पेपर भेज दिया और गलती से 3 में से 2 ने छाप दिया और आपको पता ही नहीं चला. तो ये अनइथिकल प्रैक्टिस है. सो हाउ टू ओवरकम दिस स्पेक्ट्रा? सो व्हेन यू आर सेंडिंग abstract or summary, you can send it to 10 different journals, no problem. But the moment 3 journals are asking you for your paper, then in that email you must mention that, dear editor, I am sending the same paper to journal A, journal B along with your prestigious journal. If you decide to consider my research work for the publication, kindly intimate me in advance so that I will withdraw my publication request from journal A and journal B. या असं ईमेल द्यायला काय जातं?
म्हणजे मग त्यालाही कळतं की हा पेपर अल्टिमेटली जर्नल को अच्छा पेपर लगता है। और कैंडिडेट को लगता है कि मेरा अच्छा पेपर सब जगह पब्लिश हो। तो आप आगे चल के आपके ईमेल में सिर्फ आपको इतना डिक्लेरेशन देने का है, सो दैट वो एडिटर को मालूम रहेगा कि आप यहाँ यहाँ भेज रहे हैं। तो अगर वो डिसाइड करता है, से जर्नल बी बोलता है कि हाँ आपका पेपर पब्लिकेशन के लिए अप्रूव हो गया है, तो आप फिर ये जर्नल और जर्नल ए को ईमेल डाल दो, काइंडली stop my work and I am hereby withdrawing my request to publish my paper in your journal. I will look for future opportunities to consider place of publication with your esteemed journal. संपलं. तर या होतात चुका, या जाणून बुजून केलेल्या नसतात, या अनजाने इसमें होता है, तो आपको वो भी उसका ख्याल रखने का है। देन आप अगर कोलैबोरेशन में काम कर रहे हो और आपने आपके कलीग को बिना बताए आपने पेटेंट कर दिया और वो पेटेंट पे आपने खुद को सोल इन्वेंटर बता दिया, तो वो भी अनइथिकल माना जाएगा। जैसे वो पौंडीचेरी की वाइस चांसलर थी, उसने वो स्टूडेंट का पेपर अपने नाम पे छाप लिया, मतलब ये पेपर मैंने लिखा है, विच इज अगेन कंसिडर्ड एज अनइथिकल। नंतर सेकंड पॉइंट जो आप सब लोग करते हो यूनिवर्सिटी के, इंक्लूडिंग अ कलीग एज एन ऑथर ऑन ए पेपर इन रिटर्न फॉर फेवर इवन दो कलीग डिड नॉट मेक सीरियस कॉन्ट्रीब्यूशन। मतलब मैंने एक पेपर लिखा, अंजलि फाले मैडम का नाम डाला और अंजलि फाले ने एक पेपर लिखा और मेरा नाम डाला। मेरे पेपर में उन्होंने कुछ नहीं किया, उनके पेपर में मैंने कुछ नहीं किया। या पद्धती आहेत। आता जे नवीन नॉर्म आले आहेत युजीसीचे, त्याच्यात सोलो पेपरचे मार्क वाढवले आहेत। पेपर शक्यतो सोलो लिहायचा। आत्ताही तुम्ही पीएचडी करत असताना तुमचा गाईडचं नाव तुम्ही रिसर्च पेपरमध्ये टाकता, कारण तो गाईड आहे, भगवान आहे तो तुमचा, तर ते अनइथिकल आहे। पण मग ते त्याला चॅलेंज करायची ताकद आहे का? 90% लोकांकडे ती ताकद नसते, आपण टाकतो ना। मग ते गाईडला कळलं पाहिजे। असेही काही गाईड मी बघितलेत जे म्हणतात मी काम केलं नाही, मला याचं नाव नको। तर परीक्षेमध्ये जेव्हा तुम्हाला प्रश्न येईल तर तेव्हा सांगायचं बाबा की गाईडचं नाव मी टाकणार नाही कारण गाईडने काम केलं नाही, हे इथिकल आहे। आता तुम्ही जे करतायत ते अनइथिकल आहे। देन डिस्कसिंग विथ युअर कलीग और कॉन्फिडेंशियल डेटा फ्रॉम अ पेपर दैट वी आर रिव्ह्यूइंग फॉर अ जर्नल। मी एक 3 की 4 जर्नलच्या एडिटोरियल बोर्डवर आहे ऑस्ट्रेलिया न्यूझीलंडच्या। तर आमच्याकडे आधी ऍबस्ट्रॅक्ट येतो आणि ऍबस्ट्रॅक्ट जर खूपच आवडला तर मग त्याला ओके केल्याबरोबर पेपर डाउनलोड होतो। तर सुरुवातीला मलाही एवढं काही कल्पना नव्हती, तर जेव्हा हे इंडियन कॉफी हाऊस वगैरे चालू होतं गुलपेठचं, तर तेव्हा मी काही असे माझे कलीग होते, त्यावेळेस मी डिस्कस करायचो की वहाँ के लोग कैसा सोचते हैं, वो पेपर कैसा लिखते हैं, तो ये एक्चुअली अनइथिकल है। आई शुड नॉट डिस्कस एनीथिंग दैट आई एम रिव्यूइंग फॉर अ जर्नल। पण नंतर मला कळलं की आई शुडंट बी डूइंग ऑल दिस थिंग। तो ये होता है, आप जब एक अलग रिव्यूअर के पोस्ट पे अगर जाते हो तो यू शुड नॉट डिस्कस और डिस्क्लोज एनीथिंग आउट ऑफ दैट, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड अनइथिकल। देन अगर आगे चल के आप अगर रिव्यूअर बन गए, रिसर्च ग्रांट के पेपर आप रिव्यू कर रहे हैं, और रिव्यू करते करते आपको कोई डेटा मिला या कोई आइडिया मिली या कोई मेथड मिला और आपने उसका इस्तेमाल कर लिया बिना परमिशन लिए, वो भी अनइथिकल माना जाता है। इथिकल क्या होगा कि वो रिव्यूअर ने जिसका पेपर है, जिसका रिसर्च प्रोजेक्ट का राइटअप है, उसका रिटर्न कंसेंट लेके या उसको साइट करके अगर उसका इस्तेमाल किया तो वो लीगल या इथिकल माना, लीगल नहीं इथिकल माना जाएगा। देन साइंस के लोग ये बहुत करते हैं, ट्रिमिंग द आउटलायर डेटा फ्रॉम द डेटा सेट विदाउट डिस्कसिंग योर रीजंस इन अ पेपर। आप एखादा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आप जब उसका इन्वर्टेड बेल कर प्लॉट करते हो तो आपको 2 टेल में डेटा मिलता है जो बहुत रेंज के बाहर का होता है, डेविएशन वाला डेटा होता है। कैंडिडेट क्या करता है, उसको हटा देता है और वो
उसको डिस्कस नहीं करता है. सो एज ए ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट रिसर्चर और इवन व्हाइल डूइंग अ पीएचडी, जो भी आपको आउटकम मिल रहा है एज इट इज डालिए और डिस्कस कीजिए. डिस्क्राइब व्हाई यू आर सीइंग द लॉन्ग टेल्स एट द एंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. व्हाट इज हैपनिंग? देयर माइट बी समथिंग सिग्निफिकेंट हैपनिंग, but you are more concerned about explanation, so you just cut it so that you don't have to do any explanation. तसं कृपा करून करू नका. थर्ड पॉइंट जो सब लोग करते हैं और जिसका मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, using inappropriate statistical technique to enhance the significance of your research. आपने हाइपोथेसिस लिखा है आपके सिनॉप्सिस में, आपने डेटा कलेक्ट किया, आपने भी उसको एक स्टैटिस्टिकल टूल लगाया और वो टूल लगाने के बाद आपके रिसर्च का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा आया. आपको जरा डाउट हुआ कि यार ये एकदम ज्यादा क्यों आया, तो आपने और एक दो टूल लगा के देखे और उनको पता चले कि नहीं, इसी का ज्यादा आ रहा है, मैं इसी को फाइनल टूल करके इस्तेमाल करूँ. आपने डाल दिया, नथिंग रॉन्ग विद दैट, बट you are using inappropriate statistical technique. आपने अगर सही टेक्निक इस्तेमाल की तो then you shouldn't be worried about significance of your research. Be कैंडिडेट का जो बायस, जो कल मैंने आपको बताया था ना, उसका वो बायस रहता है और इसीलिए मेरे को पीएचडी में दिखता है कि वो पूरे के पूरे एक्सेप्ट करता है या पूरे के पूरे हायपोथेसिस रिजेक्ट करता है. असं होऊच शकत नाही. त्याच्यात दोन गोष्टी आहेत. एक म्हणजे बनवताना यायले काही माहित नाही यांनी काय लिहिलं, किंवा टेस्ट करताना यायले काही माहित नाही यांनी काय टेस्ट केलं. अगर रियलिस्टिक वर्ल्ड में हम देखेंगे तो कुछ एक्सेप्ट हो गया, कुछ रिजेक्ट हो गई. आप एकदम 100% एक तरफ कैसे क्या जा रहे हो, +1 या -1 में कैसे क्या जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसमें स्टैटिस्टिकल टूल का भी कंट्रीब्यूशन होता है. जर्नल के जो एडिटर होते हैं उनको पीयर रिव्यू करना पडता है. वो लिखते हैं डबल ब्लाइंडेड ये वो. मला असे अनेक जर्नल माहिती आहेत ते फक्त कागदावर लिहितात डबल ब्लाइंडेड पीयर रिव्यू. ते न करणं सुद्धा अनइथिकल आहे. देन ये केस हुई थी और वाइवा के दिन ये केस ओपन हुई. वो एग्जामिनर को गुस्सा आया, वो लड़की ने रो दिया और फिर डिग्री मिल गई. उसके लिटरेचर रिव्यू के चैप्टर में उसने जो डाला था ब्रैकेट में, फॉर एग्जांपल उसने डाला होगा अभिलाष सुखदेवे 2012. तो अभिलाष सुखदेवे 2012 बिब्लियोग्राफी में नहीं था. तो वो एग्जामिनर ने पूछा ऐसा क्यों किया, और लड़की ने बोला रिसर्च ली भी. तो उसने थीसिस टेबल पे जोर से आपटा. तो फिर माहौल गरम हो गया. या मूर्खपणाच्या चुका करू नका. तुम्ही कोणाचं जरी काही घेत असाल तर एक तर त्याला फुटनोट मध्ये टाका, नाहीतर तुमच्या लिटरेचर मध्ये जेवढे लोक आहेत त्याला बिब्लियोग्राफी सारखा. ये अनइथिकल माना जाता है. वो थोड़े पुराने ख्यालात के थे वो एग्जामिनर. वो बोले ये आपने अनइथिकल प्रैक्टिस की है, ये सही नहीं है. उसका आपको एक्नॉलेजमेंट देना बहुत जरूरी था. तो वो वाइवा के दिन खुल गया. वैसा करो मत. आप आपका लिटरेचर रिव्यू का चॅप्टर ही सवय लावा. म्हणजे कधी होतात चुका, पण 10 वेळा चेक करा ना, तुमच्याकडे 5 वर्षाचा वेळ आहे ना. देन स्ट्रेचिंग द ट्रूथ ऑन ग्रांट एप्लीकेशन to convince the reviewer that your project make a significant contribution to the field. इसका मतलब थोड़ा सा झूठ बोलना या फेकना. नॉर्थ के भाषे में फेकूपंथी करायची नाही. म्हणजे आता तुम्ही बघा, ये जब कोरोना के वैक्सीन्स आने लगे तो एफिकेसी की बात होने लगी. तो सबसे हाईएस्ट एफिकेसी थी रशिया के स्पुतनिक 5 की. बट अगेन एफिकेसी कैसी देखी जाती है, आपने अगर अभी रिसेंट देखा होगा, हमारी जो इंडियन मेड वैक्सीन है उसके थर्ड ट्रायल में 81% एफिकेसी आई. अब 81% कितने लोगों पे टेस्ट किया था, 23,700 लोगों पे. अहो 138 कोटींचा लोक आहे, देश आहे. 23,000वर 81% तुम्ही मानाल का त्याला? विज्ञान मानतं, त्याला मानावं लागेल आपल्याला. ते अप्रोप्रिएट सॅम्पल असेल
बरेचदा कंपन्या त्यांच्या ड्रग किंवा व्हॅक्सिन किंवा औषधाची एफिकसी खूप जास्त दाखवतात, सो दॅट दे गेट फेवर्स फ्रॉम ग्रांट एजेंसीज। वैसा कभी भी करने का नहीं। आप अगर कोई एखादा सुपर कंडक्टिविटी का आप एखादा मॉड्यूल बना रहे होंगे तो आप बोलेंगे अरे इससे बिजली इतनी कम हो जाएगी। डोंट ओवर एस्टिमेट और ओवर टॉक, ओके। एंड देन लास्टली, स्ट्रेचिंग द ट्रूथ ऑन जॉब एप्लीकेशन और सीवी। अपने सीवी के बारे में कभी भी झूठ नहीं बोलने का, नहीं बोलने का। मैं एक बार एक सीवी देखा था, थे बहुत सीनियर थे, वो यूनिवर्सिटी में थे महाराष्ट्र के। त्या माणसाने 953 पेपर लिहिले होते साहेब, लिहिलेही असतील, आय डोंट डिनाय। 953 पेपर। और मी तो एकदम खूप हंबल होऊन गेलो। ते होते इतिहासाचे होते, ते हिस्ट्री वाले टीचर थे आणि त्यांचे 88 पीएचडी स्टूडेंट होते वो। मतलब मैं उनको जरा मिलके जरा हिल गया था। अब उसमें सच्चाई कितनी थी मेरे को मालूम नहीं, पर आले होते ते रिटायरमेंटलाच आले होते, म्हणजे तेच वर्ष त्यांचं रिटायरमेंट होतं मला वाटतं ज्यावेळेस मी गेलो होतो त्यांच्या विद्यापीठात। तो वो कई बार लोग डालते हैं जो उन्होंने किया नहीं है, वैसा मत करो। कम डालने से अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा होगा तो उसको जाने दो, जो सच्चाई है उसी को आप रिप्रेझेंट करा। आता जेव्हा तुम्ही टीचर वगैरे व्हाल तर ते गिविंग द सेम रिसर्च प्रोजेक्ट टू स्टूडेंट टू सी हु डज इट फास्ट, डजंट वर्क, ओवरवर्किंग, एक्सप्लॉइटिंग ग्रेजुएट्स और डॉक्टर स्टूडेंट। मैं आपको बताता हूँ, फॉरेन में पीएचडी के स्टूडेंट का बहुत एक्सप्लॉइटेशन होता है, बहुत ज्यादा होता है। ऑस्ट्रेलिया में अपना एक पूना का लड़का था, उसने सुसाइड किया। उसका गाइड उसको सैटरडे संडे बुला के घास काटने, लॉन मोवर नहीं, गवत कापायचं। मेरा एक कलीग था, वो पूरे फैमिली की लॉन्ड्री लेके जाता था, लेके आता था। वहां पे बहुत सताते हैं वो, क्योंकि वहां पे एक तो वेटिंग लिस्ट ज्यादा रहती है, ऐसे सबको नहीं मिलती डिग्री। मिनिस्ट्री कंट्रोल करती है, जो की युनिव्हर्सिटीज और ऑटोनॉमस, आणि मिनिमम त्यांना 84 महीने लागतात मिनिमम, उसके बाद ही आपको मिलती है। तो कई बार अब डॉक्टरल स्टूडेंट को एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो आप जब गाइड बनोगे, एक चीज याद रखने का, आपके स्टूडेंट से कभी भी कोई पॉकेट नहीं लेने का, कोई मिठाई का डब्बा नहीं लेने का, उसको सिर्फ काम करने का। उसको बोलना अच्छा काम कर, साइन ले और निकल जा। हे नैतिकतेचे धोरण आहेत बरं का। बरेच लोक काही घेतात करतात तो त्यांचा लुकवतोय, पण तुम्ही नैतिकतेने तिथे उभं राहणार का ते तुमच्यावर आहे। रिसर्च रिकॉर्ड, आप अगर गाइड बन गए तो आप रिसर्च रिकॉर्ड रखिए, मैं वो भी आपको आगे बताऊंगा। फेलिंग टू मेंटेन रिसर्च डाटा फॉर ए रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज 10 ईयर। आप जो भी रिसर्च करोगे, मैं कई बार पीएचडी स्टूडेंट को बोलता हूँ कि जिस दिन आपका वाइवा वगैरह हो जाएगा, उस दिन शाम को आके आपके पूरे क्वेश्चनर, आपके पूरे चैप्टर, आपका पेन ड्राइव या सीडी जो भी है, उसको बबल रैप में रैप करने का, एक अच्छे से बक्से में रखने का, उसको टेप लगाने का और वो एक अच्छी जगह रख देने का। और कंप्यूटर में भी जितना आहे वो क्लाउड में आपको स्वतःची मेल स्वतःला पाठवायची, फोल्डरवर ते ठेवून जायचं, म्हणजे 10 वर्षांनी जर कोणी विचारलं तर आपल्याला ते ट्रेस करता आलं पाहिजे। रिसर्चचे रेकॉर्ड वेळोवेळी मेंटेन न करणं सुद्धा अनैतिकतेचं धोरण आहे। देन मेकिंग सिग्निफिकेंट डेविएशन फ्रॉम द रिसर्च प्रोटोकॉल अप्रूव्ड बाय योर इंस्टीट्यूशन। आपका सिनॉप्सिस आरआरसी ने अप्रूव किया हुआ है, आपका काम उसके मुताबिक ही होना चाहिए। महाराष्ट्रात काही विद्यापीठ असे आहेत की जिथे थिसिसच्या मागे सिनॉप्सिस जोडणं मॅन्डेटरी आहे, म्हणजे तो एक्झामिनर आधी, कारण एक्झामिनर तुमच्या आरआरसी मध्ये नसतो, तो आधी सिनॉप्सिस वाचेल आणि मग तो बघतो की कॅन्डिडेटनी सिनॉप्सिसच्या पद्धतीने थिसिसचं काम केलंय का। ते नसेल तर मग तो तुम्हाला कॉमेंट पाठवतो, किंवा तो म्हणतो मला हे करायचं नाही, याच्यात डेव्हिएशन खूप आहे। मग ते गाईडला इन्फॉर्म करतात, मग ते कॅन्डिडेटला इन्फॉर्म करतात, मग ते रिवाइज करावं लागतं, मग ते वायवा अजून 6-8 महिने वर्षभर डिले होतो। हे सुरू झालंय, मला नागपुरातली पद्धत माहित नाही। तो याद रखो, आपके सिनॉप्सिस में जो है वही आप करो, उससे प्लस माइनस 5-10% हियर एंड देयर इज एक्सेप्टेबल, बट ज्यादा डेविएट मत करो। जब आप प्रोफेशनल रिसर्च करोगे ग्रांट का, उसमें भी आपने जो मेथड डाली है, जो टाइम फ्रेम डाली है, वैसा ही काम करना पड़ता है। आप डेविएट हुए तो आपका नाम शायद ब्लैक लिस्ट हो सकता है, आपको स्क्रूटिनी में डाल सकते हैं कि आपने बताया कुछ और किया कुछ।
ते सुद्धा अनइथिकल मानलं जातं. देन सॅबोटॅजिंग समबडीज वर्क, स्टीलिंग सप्लाय, बुक, डेटा रिगिंग एंड एक्सपेरिमेंट सो दैट नो हाउ इट विल रन आउट. ये साइंस के जो लोग रहते हैं ना, ये सबसे बदमाश रहते हैं. ये अपनी लॅबोरेटरी में खुद ही एक्सपेरिमेंट करके इनको मालूम रहता है ये क्या कर रहे. हे गमती नाही म्हणता बरं का बदमाश, राग नका घेऊ, सगळेच बदमाश असतात तसे, पण हे लोक डेटा मॅनिप्युलेट करू शकतात. त्याच्यामुळे डेटा रिगिंग करायचं, जैसा आ रहा है वैसा आने दो ना, देखा जाएगा. पण काळजी ही घ्या की तुमचं कॅलिब्रेशन, तुमचे कन्झ्युमेबल, तुमचे इक्विपमेंट परफेक्ट है. फिर आउटकम जो भी आएगा देखा जाएगा. कई बार कैंडिडेट क्या करता है, डेटा को खुद ही छिलाता है. टेम्परेचर अगर 70 होगा तो वो 55 लिखेगा, ह्यूमिडिटी 72 होगी तो वो 82 लिख देगा. वो करने का नहीं, वो भी अनइथिकल माना जाता है. ते कळतं कोणाला का, ते कोणाला कळत नाही. ते जे म्हणतात ना, झाकली मूठ 1.25 लाखाची, हे तुम्हालाच माहिती आहे तुम्ही काय केलंय. तुम्ही जर स्वतःच्या अंतरात्म्यात डोकावून बघाल तर तुम्हालाच माहितीये तुमच्या मनात कोणते विचार येतात, तुम्ही कोणते चांगले वाईट कामं केले आहेत, काय तुमच्या इच्छा आहेत, हे तुम्हाला माहिती. हे मलाही नाही माहित आणि तुमच्या शेजाऱ्यालाही नाही माहित. पण हे कळण्यापासून आपल्याला पराभूत करायचं, हे करायचं नाही आपल्याला. देन मेकिंग अनऑथोराइज कॉपी ऑफ डेटा, पेपर, कंप्यूटर प्रोग्राम. हम एक बार बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के लिए प्रपोजल भेज रहे थे, तो उसमें क्लियरली लिखा था मायक्रोसॉफ्ट वर्ड की की लगेगी. आपले सगळे प्लॅगराइज सॉफ्टवेअर वापरतो. हे माझं पीपीटी सुद्धा ते प्री इन्स्टॉल्ड आहे, त्याचं लायसन्स केव्हाच संपलेलं आहे. तो आप जब मोस्ट इथिकल वे है ना, आपका सब कुछ लाइसेंस के साथ होना चाहिए. तो वो आप करोगे तो वो बहुत ज्यादा रहेगा. लायसन्स आपण घेऊ शकतो, आपण तेवढे गरीब नाही आहेत, पण ते करायचं नाही ऍक्च्युअली. सॉफ्टवेअर कॉपी करायचं नाही कुठून. अँड देन ऑफकोर्स क्लिनिकल सिग्निफिकन्स त्याला ओव्हर एस्टिमेट करतात, त्याची इकॉनॉमिक बेनिफिट करण्याकरता हे फार्मसी कंपन्या करतात. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट aspect of this presentation. It could be a failure of research design. This is a very serious matter when it comes to the research, be it a PhD research or a professional research. क्या होता है, अगर आपने रिसर्च इस तरीके से डिजाइन किया, ध्यान से सुनिए. 2 एस्पेक्ट है, मैं पहला एक एस्पेक्ट आपको बताता हूँ, फिर दूसरा बताता हूँ. आपने रिसर्च को इस तरीके से डिजाइन किया कि टाइप 2 एरर हो जाएगी, तो वो अनइथिकल है. आपने डिजाइन क्यों ऐसा किया, क्योंकि आपके मन में बायस है. आपने सोचा था कि यार मैं शॉर्टकट मार लूंगा, मैं ये कर लूंगा, वो टाइप 2 एरर हो गई, वो डिजाइन का प्रॉब्लम है. दूसरा जो है, आपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया H0 को, जबकि वो फॉल्स है, वो गलत है, वो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए था. आपने इसको एक्सेप्ट क्यों किया, क्योंकि आपने जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाई है उसको, उसकी पावर इनएडिक्वेट है. तर 2 गोष्टींमुळे हे होतं टाइप 2 एरर. एक तर तुमचं डिझाईन चुकीचं आहे, नाही तर जो हायपोथेसिस तुम्हाला एक्सेप्ट करायचा होता, सॉरी, जो तुम्हाला रिजेक्ट करायचा होता त्याला तुम्ही एक्सेप्ट करून राहिले. नल H0 ला आहे, तुम्ही त्याला एक्सेप्ट केला, पण तो रिअल लाईफ मध्ये तो फॉल्स होता. पण आता असं का झालं, तुम्ही त्याला रिजेक्ट का नाही करू शकले, कारण तुम्ही जी त्याला टेस्ट लावलेली आहे ती इनएडिक्वेट टेस्ट आहे. मैं स्टैटिस्टिक्स का एक्सपर्ट तो नहीं हूं, पर मेरे पास रीजनेबल नॉलेज आहे स्टॅटिस्टिक का. ते टूल आहे, जसं स्वयंपाकघरातला तुमचा चाकू आहे ना, ते टूल आहे, त्याचा वापर कसा करायचा आपल्याला कळलं पाहिजे. तर या स्टॅटिस्टिक्सच्या जेवढ्याही टेस्ट आहेत, तर कोणत्या डेटाला कोणती टेस्ट लावायची हे जर स्वतःला समजत नसेल तर कृपा करून कोणत्या तरी तज्ञ माणसाचा सल्ला घ्या आणि समजून घ्या, जेणेकरून तुमच्या टाइप 2 एरर व्हायच्या चान्सेस हे कमी होतील. आता मला विद्यार्थी विचारतात, का हो सर, एक्झामिनरला कळेल का टाइप 2 एरर झाली,
अशक्य आहे, त्याला कळणारच नाही. पण जर त्यांनी तुमचा थिसिस वायवाच्या आधी वाचला आणि त्यांनी थोडं काम केलं 15-20 मिनिटं, किंवा त्यांनी त्याच्या एखाद्या स्टुडंटला म्हटलं देख रे, आणि त्याला पक्क कळलं की आहे होऊ शकतं, आणि त्यांनी वायवाच्या दिवशी हा प्रश्न विचारला, तो मैं गॅरंटी से देता हूं गंगा जमुना बहेंगी आपकी आंखों से. असं होत नाही, कारण तो जो एक्झामिनर असतो तो फार बिझी असतो, त्याच्याकडे 100 कामं असतात. पण जेव्हा आम्ही रिसर्च ग्रांटचे प्रोजेक्ट करतो ना, त्यात हे होतं, कारण तिथे एक डेडिकेटेड रिसर्च ऑफिसर असतो, त्याचं काम असतं सगळं चेक करायचं. दे कॅन डिटेक्ट. म्हणून माझी तुम्हाला नम्र विनंती आहे की तुमच्या थिसिस मध्ये जे काही हायपोथिसिस तुम्ही घेतलेत, सिनॉप्सिस मध्ये सॉरी, ते थिसिस मध्ये टाकताना, टेस्ट करताना, रूल नंबर 1, इफ यू आर डैम श्योर कि ये डेटा को यही टेस्ट लगती है, लगाओ, उसका रैशनल दे दो, क्यों दिए. आप अगर 50-50 है, तो व्हाट सक्सेसफुल आई डू, त्या डेटाशी संबंधित किमान 3 टेस्ट मिनिमम लावायच्या, रन करायच्या, आणि समजा 3 पैकी 2 मध्ये तुमचा नल ऍक्सेप्ट होत असेल तर तुम्ही नलला ऍक्सेप्ट करायचं, किंवा 3 पैकी 2 मध्ये नल रिजेक्ट होत असेल, नलला रिजेक्ट करायचं. दॅट वे कॅन्डिडेट इज ऑन दी सेफर साइड. हे पीएचडी थिसिस मध्ये अलाउड आहे. बाकी रिसर्च मध्ये याच्यावर प्रश्न विचारले जातात, का 3 लावल्यात, आर यू नॉट शुअर अबाउट व्हॉट टेस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर दी डेटा. तर ते ऍडव्हान्स स्टॅटिस्टिक ज्यांना कळतं त्यांनी एकच लावा, इफ यू आर 100% शुअर. नाहीतर 3 लावा आणि खाली सांगा की वाय रिसर्चर हॅव डिसाइडेड, गिवन द इंट्रिकेसी ऑफ डेटा अँड इट्स डिस्ट्रीब्युशन, researcher have decided to apply test A, B, and C, which falls in the same domain. And after running the 3 tests, researcher came to conclusion that 2 tests indicate the significance. Hence, the H0 is accepted. हे वाक्य लिहायला काय जातं? काही जात नाही, है ना. तर हे आपण करायचं. नाही तर मग तुम्ही 100% शुअर आले पाहिजे कोणत्या आणि कोणत्या डेटाला कोणती टेस्ट लागतं हे 100% कोणी सांगू शकत नाही. शेवटी अरे मायक्रोफोन म्यूट करा, मला आवाज येतो. पद्मा मॅडम काइंडली म्यूट युअरसेल्फ. पद्मा मॅडम, व्यापाच्या गोष्टी नका करू, इथे तापाच्या गोष्टी चालू आहे, टाईप 2 एरर, याच्याकडे लक्ष द्या. नाही तर भलताच व्याप होऊन जाईल तुमच्या थिसिस मध्ये. लई भारी मॅटर आहे बरं का. ये टाइप 2 एरर छपट में आती कभी कभी. ये छपड़ने मत दो, उस दिन रोने का नहीं अपने को. तर 3 लावायच्या. नाहीतर तुम्हाला थोडी भ्रमंती करून, आपल्या नागपुरात बरेच लोक आहेत, हिस्लॉप कॉलेज आहेत, आपले माझी कुलगुरू साहेब स्टॅटिस्टिक्स विद्यापीठाचे आहेत, ते रिटायर झाले का मला माहित नाही, पण विद्यापीठात तुम्हाला स्टॅटिस्टिक्सची चांगले लोक मिळतील. तुमच्या कॉलेज तुमची कोणतरी असतात, शोधावं लागतं, बाकी काही नाही. शोधानी बरोबर ते मिळतात, जायचं, बसायचं, समजून घ्यायचं, मग ते कळतं व्यवस्थित. काही भूत नाही येते, पण आपल्याकडनं ती शक्यतो ती चूक झाली नाही पाहिजे याची आपण काळजी घ्यायची. ती जर खूप झालीच तर मग त्याचा आपल्याला निवारण कसं करायचं तो एक वेगळी भाग आहे, पण ते होऊ नये द्यायचं. तो टाइप 2 एरर लक्षात ठेवा. मग आपण येऊया पब्लिकेशनसाठी. तुम्ही तुमच्या करिअर प्रोग्रेशनसाठी पब्लिश करता, म्हणजे तुम्हाला ते काहीतरी म्हणतात ना, वर्षातनं 2 पेपर वगैरे लिहावे लागतात. तुम्हाला जर ग्रांट हवी असेल तर तुम्ही हाय क्वालिटी पेपर पब्लिश करतात. तुम्हाला टेन्युअर वाढवून द्यायचं असेल त्याला गेटिंग टेन्युअर म्हणतात पाश्चिमात्य भाषेत. तुम्हाला जर प्रमोशन इंटर डिपार्टमेंट हवं असेल तर त्याच्याकरता ज्यांचे पब्लिकेशन आहेत त्यांना प्राधान्य दिलं जातं. आणि तुम्हाला एखाद्या विषयाचा बॉस बनायचा असेल तर तुम्ही पब्लिश करता. तुम्ही खूप सारे पब्लिश केले की त्या विषयात तुम्हाला लोक जाणकार समजतात. तर आपण आपला थिसिस पब्लिश करणार आहोत. आपण डेटा फॉल्सिफाय नाही करायचा, डेटा चीट नाही करायचा, प्लॅगरिझम नाही करायचा. प्लॅगरिझम म्हणजे रामनाम जपता पराया माल अपना, ते अजिबात करायचं नाही. बरेचदा आपण रोजच्या रोज प्लॅगरिझमचे व्हिक्टिम असतो, ते जाणून बुजून किंवा अंजाने में वो होता है. वी शुड बी रिफ्रेन फ्रॉम ऑल दैट. वी ऑफन टेक आइडियाज फ्रॉम अदर एंड डोंट एट्रीब्यूट टू देम. आपको अभी जो नए ट्रेंड आ रहे इथिक्स में, even say I get idea from Dethe sir, and then if I'm writing something, I will quote that this idea I got it from Dethe sir on 16 March 2021, 4 p.m.
ओव्हर अ कप ऑफ कॉफी. हे नैतिकतेचे डेमॉन्स्ट्रेशन झाले. तुमचं स्वतःचं काहीही नाहीये. तुमच्या डोक्यात येणाऱ्या कल्पना या कुठल्या तरी गोष्टींनी प्रभावित होऊन मोटिव्ह होऊन येतात. त्याच्यामुळे त्याला ऍट्रिब्यूट करा. लोक झाडांना ऍट्रिब्यूट करतात, उगवत्या सूर्याला ऍट्रिब्यूट करतात. हे नैतिकतेचे खूप वरचे टप्पे आहेत बरं का. तर त्याला हंबल म्हणायचं. ते नाही केलं तर होत काही नाही, पण केलं तर ते खूप चांगलं वाटतं. देन बरेचदा आपल्याला ओरिजिनल सोर्स माहित नसतो बऱ्याच गोष्टींचा. तर दॅट टाइम वी जस्ट लिव्ह इट ऍज इट इज. सो प्लॅगरिझम मध्ये काय होतं, आता काही नियम मला जे माहिती आहे, सोशल सायन्स मध्ये तुम्ही 500 शब्द ऍज इट इज घेऊ शकता कोणत्याही जर्नल, बुक, पेपर मधनं, आणि त्याचं नाव, त्या रिसर्चरचं ज्याच्याकडनं घेतलंय त्या जर्नलचं नाव, पुस्तकाचं नाव, पब्लिकेशन, ISIN नंबर काय, ISBN नंबर काय असेल ते आपल्याला साईट करावं लागतं. तुम्हाला 500 पेक्षा जास्ती हवं असेल तर त्याला रिटर्न कन्सेंट द्यावा लागतो. तर मला वाटतं 1,500 शब्द वगैरे अलाउड आहेत. आता नियम चेक करावे लागतील, पण ते नियम आहेत सोशल सायन्सचे. आणि त्याचा रिटर्न कन्सेंट लागतो की एज इट इज वापरायचं. अब कैसा होता है, कई बार लोग वेबसाइट पे से कुछ ले लेते हैं. जैसे मैं कल आपको बताया था ना, आप अगर वेबसाइट या ब्लॉग से कुछ ले रहे हो तो एज इट इज लो, उसको पेस्ट करो, और वो जो आपका URL का जो एरिया है उसको हाईलाइट करके क्लिक करके आपके वर्ड में पेस्ट कर दो और एंटर करो, सो दैट वो URL पता चलेगा. तो जो भी कोई आगे देखेगा तो उसको पता चलेगा ये वेबसाइट से आपने ये लिया हुआ है. सो हमको हमेशा हम जो लेते हैं उसको साइट करना अनिवार्य है. सेकंड जो है, कई बार लोग लेके उसको पैराफ्रेज करते हैं. मैंने अगर ये भार्गवा मैडम के वेबसाइट से कुछ लिया, आकांक्षा भार्गवा मैडम के वेबसाइट से, उनका ब्लॉग है, और मेरे को उनको साइट नहीं करना है, मैंने वो लेके उसको घुमाया और वो मैंने अपने नाम पे डाला. दैट इज ऑल्सो अनइथिकल. दैट मीन्स टेकिंग फ्रॉम समबडी, paraphrasing it or rephrasing it and not citing the original source is unethical. It is plagiarism. ते शोधणं डिफिकल्ट आहे, पण बरेचदा लोक त्याच्यातनं एस्केप करतात, कारण ते म्हणतात शब्दशः ते तसं नाहीये. सो काइंडली डू नॉट डू दैट. मेनी टाइम वी टेक स्टैटिस्टिक, ग्राफ, टेबल, नंबर, सो उसका रेफरेंस हमको अपने थीसिस में देना अनिवार्य है. आप अगर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बना रहे हो, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बना रहे हो, उसके नीचे लिखिए सोर्स ऑथर, और इवन लिखिए फॉर्म्युलेटेड ऑन 14 मार्च 2021. तुम्ही ज्या दिवशी बनवलं ती तारीख तुम्ही त्याच्यात लिहू शकता, म्हणजे त्यांना कळेल हे तुम्ही केव्हा बनवलेलं आहे. सो वी शुड ऑलवेज बी केअरफुल अबाउट प्रोव्हाइडिंग रेफरन्सेस फॉर स्टॅट, ग्राफ, टेबल, नंबर, व्हॉटएव्हर इट मे बी. देन कोट, copying the quote directly, right? When we take certain quote, okay, then it is considered as the original quote. For example, अगर मैंने लिख दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो मैंने लिख दिया, मैंने कोई रेफरन्स नहीं दिया, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का या किसी किताब में मिला, तो लोकांना वाटेल हे माझं वाक्य आहे, राइट? सो इट इज plagiarism and unethical. So failing to put someone else direct text in a quotation mark and crediting the author may lead to the accusation of plagiarism. आप किसी का कोट ले रहे हो और किसी का टेक्स्ट ले रहे हो तो उसको कोटेशन में डालो. हाँ बोला. Sir, if I take someone lines or someone words, okay, and after giving reference, if I change some language or some words, so is it acceptable or not? No, it is not acceptable. It is plagiarism. Okay. If you are taking somebody's word, then take as it is. Don't change it. और मैं उसके और एक आगे की स्टेप बोलता हूँ. समजा तुम्ही 4 लाईनी घेतल्या किंवा 10 लाईनी घेतल्या, त्या 10 लाईनी ऍज इट इज घ्या आणि त्याला साईट करा, आणि मग दुसऱ्या पॅराग्राफ मध्ये तुम्हाला त्याबद्दल काय वाटतं ते स्वतःच्या शब्दात लिहा. दॅट इज नॉट प्लॅगरिझम. पण त्या 10 लाईनीमध्ये तुम्ही काही फिरवाफिरवी केली तर इट इज प्लॅगरिझम. बरेचदा लोक काय करतात,
त्याला त्याचं नाव नाही दाखवायचं आहे ज्याच्याकडे घेतलेलं, मग तो त्याला फिरवून टाकतो. वो छपरता नहीं है पर कभी ना कभी छपरता है, ये याद रखिएगा. ट्रूथ ऑलवेज कम्स आउट, ऑलवेज. नहीं करने का, ज्यादा से ज्यादा होगा क्या, आपको 4 ज्यादा लाइनें लिखनी पड़ेगी और उसको साइड करना पड़ेगा. ये सोपा है. इथून साडेनऊ झालं. सर हाँ, बोला बोला. आप हो पद्मा मॅडम शांत राहा, तुमचा आवाज येतोय. हा बोला. अंजली मॅडम बोला. बरं मी आता पुढे जातो, मला खूप सारे आवाज येत आहेत. नाही आवाज येत नाही. हा हा, तर ते डायरेक्ट कोर्ट मध्ये टाकायचं हे लक्षात ठेवायचं. जर तुम्ही फॉर एक्झाम्पल 2019ला राहुल गांधी कस्तुरजन पार्कवर आले होते आणि तुम्ही त्यांच्या सभेमध्ये असाल आणि राहुल गांधींनी काही म्हटलं तर ते तुम्ही ऍज इट इज टाकू शकता, कारण त्या दिवशी तुम्ही होता ते तिथे ऐकण्यासाठी. पण जर ते तुम्ही पुस्तकात, वर्तमानपत्रात, ब्लॉग मध्ये किंवा अजून कुठे वाचलं तर मग त्याला त्यांचे जे शब्द असतील ते कोटेशन मध्ये टाकणं इट इज अ मस्ट विथ दी साइटेशन. कई बार प्लेगरिज्म ये इंटेंशनल नहीं होता है, ये हमारी गलती होती है और हम त्याला काय म्हणतो ऑनेस्ट मिस्टेक. तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या ही आता है कि सपोज मैंने अगर किसी का लिया, भार्गव मैडम का लिया और मैंने वैसे ही डाल दिया तो लोग समझेंगे कि ये मेरा है. इनफैक्ट वो मेरा नहीं है, वो उनका है. मैंने उनको साइट नहीं किया, इसलिए दुनिया को मालूम नहीं है कि ये आकांक्षा भार्गव मैडम का है. तो कई बार लोग जानबूझ के उसको साइट नहीं करते. वैसा मत करो. आप जितना आप कभी मुझे मिलोगे या कभी हमारी मुलाकात होगी तो मैं मेरे ग्रांट के प्रपोजल दिखाऊंगा. हमारे एक एक पेज पे लगभग 14 साइटेशन होते हैं. 14 एका पेजवर 14 साइटेशन टाकतो मी. तुमचं नाहीच आहे काही, तुम्ही फक्त त्याला इलॅबोरेट करताय. सो द मोर साइटेशन, मला समहाउ ये कळलंय कि आप जितना साइट करोगे उतना आप सेफ हो. अगर आपके साइटेशन अचानक कम हो गए तो उनको लगेगा आप बहुत होशियार हो या बहुत प्लैगराइज कर रहे हो. तो कई बार इट इज बेटर टू साइट अ पर्सन अँड देन लीव इट. म्हणजे माझे सख्खे मामा एक आपल्या काटोलच्या याच्यात फिलॉसॉफीचे हेड होते. त्यांची बरेच पुस्तकं आहे. एन नंबर ऑफ साइटेशन. मोर साइटेशन यू पुट द सेफर यू आर, देन नोबडी विल ब्लेम यू फॉर दी प्लैगरिज्म. सो साइटेशन इज अ मस्ट. कई बार हम नहीं करते तो वो हम प्लैगरिज्म के विक्टिम समझे जाते हैं. देन plagiarism and public knowledge. Okay, so everybody know that Mahatma Gandhi was assassinated in 1948. आता याच्याकरता तुम्हाला रेफरन्स द्यायची काही गरज नाहीये. भारताला 77 मध्ये स्वातंत्र्य मिळालेलं आहे. सो व्हॉट एव्हर फॅक्ट विच इज अ कॉमन नॉलेज अँड विच इज बिलॉंगिंग इन द पब्लिक डोमेन need not be cited. But if you are saying that Gandhi was killed by a knife and not by bullet, then you need to cite something because it is a contradictory theory. गांधी जी को गोलियां लगी थी, पर आपने एक पेपर पढ़ा और वो थीसिस में लिखा है कि गांधी जी को चाकू मारा गया था और आपको वाकई में मालूम नहीं और आपने वैसा लिख दिया बिना साइट किए, तो लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे आपने ऐसा क्यों लिखा. तो आप साइट कर दो. हे बघा साहेब, साइटेशनचा फायदा काय होतो, तुम्ही जर एखादी चुकीची जरी माहिती घेतली ना तर तुम्ही म्हणू शकता साहेब ती माझी नाहीये, ती त्याची आहे. आप बचते हो. होता क्या है, कैंडिडेट को लगता है कि मेरी होशियारी दिखाने के लिए सब मैं मेरा अपना बताऊं, और उसमें अगर कोई गलत निकला तो बंदूक उसके कान पे लगाई जाती है. म्हणजे लिटरली बंदूक नाही, त्याला ब्लेम देतात. आणि तुम्हाला अकॅडमिक वर्ल्ड मध्ये जर रिस्पेक्ट हवा असेल तर या गोष्टी लाईमलाईट मध्ये येणं हे बरोबर नाहीये. ते अजून तरी येत नाही आपल्या महाराष्ट्रात कुठे, पण येतात अधूनमधून असे किस्से येत असतात. तर काइंडली डोंट साइट करा ना साहेब, नाव टाकून द्या, संपलं. फक्त ते रिलेव्हंट, त्याला थोडंसं डिस्कस करायचं. मेडिकल रिसर्च में जितने भी आप बॉटनी, जूलॉजी, फार्माकोलॉजी वाले लोग हैं, तो आप जानवर और इंसानों के ऊपर ट्रायल करते हैं. सो बिफोर डूइंग दैट वी मस्ट give them a proper understanding, especially human being, a proper
अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सपेक्टेड आउटकम. जैसे कोई ड्रग की ट्रायल होती, जैसे मैंने तुमको बताया की नाही मालूम नाही, NMC लोक माझ्याकडे आले होते वॅक्सिन ट्रायलला येता का, मी दिलं होतं माझं नाव. तर ते फॉर्म असतो की असं असं तुम्हाला होऊ शकतं, ही ट्रायल आहे वगैरे. तो एखादे दवाई के ट्रायल के लिए जब आप जाते हो जिसका डेटा अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है, तो पोटेंशियल हजार्ड उसमें रहते हैं. बट द कंपनी इटसेल्फ मेक श्योर बिफोर सिलेक्टिंग द सैंपल कि वो किस तरीके का सैंपल के ऊपर वो दवाई एडमिनिस्टर करेगी. बट प्रॉब्लम ये होता है कि उनको पूरी रिस्क बताना जरूरी होती है. कई बार रिसर्चर वो रिस्क नहीं बताते, तो वो उसके अगर साइड इफेक्ट आने लगे तो उसमें जान जोखिम में जा सकती है. वैसा नहीं देना इज बेसिकली दी अनइथिकल इशू. जैसे जस्टिफिकेशन ऑफ द रिसर्च, एक्सेस टू पार्टिसिपेंट प्राइवेसी, इनफॉर्म कंसेंट, उसने कंसेंट देना, एंड देन पोटेंशियल हार्म. आपको ये सब उससे रिटर्न में देना है, ये सब उसको बताने का है. दीज आर द इथिकल मैटर. आप अगर ये नहीं करते हो तो फिर आप अनइथिकल ग्राउंड पे कहीं ना कहीं चल रहे हो, ये उसके मायने आते हैं. एक डॉक्टर वॉन्ग होते 2004 ला, he was he cloned 30 human embryos. Overnight he became a hero. लोग उनको नोबेल प्राइज के लिए भी उनका नाम रिकमेंड करने लगे. 2005 में, एक साल बाद, वो टीम ने बोला कि वो जो स्टेम सेल जो है वो स्किन सेल से बनाए गए 11 लोगों के. उसी साल नवंबर में वो डॉक्टर ने अपोलॉजी दी कि उसके जो रिसर्चर थे उनके एक्स का इस्तेमाल उसने किया उनको बिना बताए. और दिसंबर 2005 में वो टीम के रिसर्चर ने बोला हे रिसर्च वॉज 100% फॅब्रिकेटेड. मग त्याची कमिटी बसली, त्याच्यात लिहिण्यात आलं इंटेन्शनली फॅब्रिकेटेड. ओके, सो पैनल का कमेंट ये था, दिस इज अ सीरियस रॉन्ग डूइंग दैट डैमेज द फाउंडेशन ऑफ साइंस. इसीलिए जब भी मैंने बोला था साइंस के लोग लेबोरेटरी में बैठ के कुछ भी फैब्रिकेट कर सकते हैं, जरूरी नहीं सभी करेंगे, पर ये होता है. तो बेसिकली इट हैज डैमेज द फाउंडेशन. इसीलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जैसा डेटा आया वैसा लो. हाँ, उसको डिफेंड आपको करना पड़ेगा. डू नॉट फैब्रिकेट, डू नॉट ऑल्टर. एक झूठ बोलने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, ये लक्षात ठेवायचं. और वो हिंदी में भी जो गाना है, जो मैं मेरे प्रोग्राम में जब सिनियर सरकारी लोगों के साथ होता हूँ, तो आमचे ते गमती नहीं होतात, कारण ते सगळे DGM आणि GM लेवलचे लोक असतात. तर आम्ही नेहमी त्यांना एका गाण्याची आठवण करून देतो, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है. भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा. हा, तर ते लक्षात ठेवायचं. चुका जाणून बुजून करू नका, कोणाच्या लफड्यात पडू नका. लग्न केलं असेल तर आपल्या नवऱ्या बायकोंवर प्रेम करा. आकर्षण असतं, तुम्हाला तुमच्या कॉलेजची एखादी मुलगी आवडत असेल, एखाद्या मॅडमला एखादा विद्यार्थी, नॅचरल आहे. आपल्या बाउंड्री लाइन क्रॉस करायच्या नाही. नैतिकता की आहे. ओके, वो नैतिकता है. आप अगर अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो तो आपने नैतिकता की एग्जाम पास कीजिए. बिकॉज आपका कैरेक्टर बनने के लिए 10-20 साल लगते हैं, उसका असैसिनेशन 1 मिनिट में होता है. राइट, तर ते करायचं नाही. आपल्याला आपली इमेज प्रोटेक्ट करायची आहे, काम आपलं व्यवस्थित झालं पाहिजे. नोबडी शुड एबल टू पॉइंट फिंगर एट अस दैट दिस पर्सन हैज डन समथिंग रॉन्ग. जहां आपको लग रहा होगा गलती है, हो सकती है, तज्ञांचा सल्ला घ्यायचा. तर चुका होतील, पण त्या जाळून बुजून करू नका. चांगले मित्र मैत्रिणी ठेवा, काही तुमचे वेल विषय ठेवा जे तुम्हाला जेन्युइनली मदत करू शकतील, आणि आपलं काम व्यवस्थित पद्धतीने करा. अजून एक तुम्हाला गमतीची गोष्ट सांगतो, जी बरेच दिवसात मी कोणाला सांगितली नाही. आपली PhD झाल्यावर आपल्या नावासमोर डॉक्टर लावणं हे अनइथिकल आहे बरं का. हे मी भारतातली गोष्ट नाही करत, अमेरिकेतली गोष्ट करताय मी. करेक्ट प्रोटोकॉल आहे, तुमचं नाव कॉमा आणि PhD, त्याच्या पुढे MBA, MA ऑनर्स, BCom, हे जे तुमच्या गाईडचं असतं ना, त्या PhDच्या थिसीसच्या पहिल्या पानावर ते चीड येते ती लिहिताना. करेक्ट प्रोटोकॉल आहे. डॉक्टर फक्त MBBS लोकांना लावायची परमिशन आहे. इव्हन डिलीट वाले लोक लावू शकत नाहीत. हा एक गमतीचा भाग आहे.
त्याच्यामुळे तो तो नैतिकता म्हणजे तुम्ही जर उद्या अमेरिकेत वगैरे गेले डॉक्टर लिहिले तर लगेच तुम्हाला ते MBBS समजतील. पण तुम्ही जर तो प्रोटोकॉल ठेवला तर यू आर कन्सिडर्ड एज अ डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी, वी आर नॉट ऑफ मेडिसिन. ती एक पदवी आहे. ती पदवी तुमच्या चांगल्या कामाकरता देण्यात येणार आहे. त्याच्यामुळे चांगलं काम करून त्या पदवीला जस्टिफाय करा. पुढे कोणाचे तरी दीप बना, ते रोशन बना, लोकांना रस्ते दाखवा, जागरूक करा विद्यार्थ्यांना, आणि ही रिसर्चची ज्योत आहे ही पुढे पुढे आपण तेवढ ठेवू. तर 2 दिवस ऐकल्याबद्दल हॅलो खूप धन्यवाद. हॅलो आणि प्रीती मॅडमचेही धन्यवाद, देठे सरांचे धन्यवाद, आणि ऑल द बेस्ट टू यू. बोला अंजली मॅडम, बोला. हा सर, एक महत्वाचा पॉइंट मला सांगायचं आहे की बोला. सर, हे जे इथिकल आपण म्हणतोय, स्पेशली फॉर सायन्स स्टुडंट्स अँड पर्टिक्युलरली दोज हू आर वर्किंग ऑन दी एनिमल्स in like in zoology department. So there are very actually the ethical committee should give the permission under the Yes, correct, CPC. correct. Yes, yes, No, yes. sir, Absolutely correct. CPC, SEA under, and that for the animal ethics committee. Absolutely. That is then only the research Oh, is allowed. But what absolutely, is absolutely. happening, sir, की खूप कमी प्रमाणात या कमिटी आहे. म्हणजे प्रत्येक इन्स्टिट्यूशन लेवलला त्या कमिटीज असायला हव्या, त्या राहत नाही. आणि जनरली दिस इश्यू कम्स आफ्टर दी सिनॉप्सिस सबमिशन. लाईक आय ऑल्सो सफर्ड ड्यू टू दिस. कारण काय होतं सर, म्हणजे आधीच जर ही परमिशन घेतली सिनॉप्सिस सबमिशनच्या आणि RRCच्या आधी, मग तुम्हाला सोपं झालं असतं. स्टुडंटचा वेळ वाया जात नाही. आणि नंतर तर असं काही प्रोव्हिजन आपल्या नागपूर युनिव्हर्सिटीत आहे नाही. आणि नंतर मग तुम्ही ते एक काम करा मॅडम. मला अगदी खूप चांगलं वाटलं की तुम्ही, ही ना प्रशासकीय बाब आहे. तुम्ही आता काय, मला नाही माहित बॉटनी झुऑलॉजी कोणी डीन असतील ना, त्या डीनला तुम्ही असं एक निवेदन द्या आणि त्यांना म्हणा या सब कमिटी प्रत्येक कॉलेज लेवलवर ठेवा, त्यामुळे या अडचणींचं आपल्याला निवारीकरण करता येईल. असं करा. बसत नाही आणि 2-2, 3-3 वर्ष स्टुडंट सफर करतात. आणि कॉपी टू कुलगुरू अग्रवाल साहेबांना कॉपी पाठवा त्यांची डायरेक्ट, द्यायची बिलकुल. हा आपला हक्क आहे मॅडम. नाही, कसं होतं माहिती काय, एखादा जर कोणी तुमचा हक्का पुढे येईल ना, तर बाकी 100 लोकांना मग पुढे गैरसोय नाही होणार. आता आपण त्या सगळ्या गैरसोय असतात, त्रुटी असतात. मोठ्या लोकांना त्यांना फक्त आपल्याला निदर्शनास आणून द्यायचे की असं जर झालं तर विद्यार्थ्यांसाठी सोयीचं होईल, आहे ना. तर ती चांगली बाब आहे. आपण ती योग्य प्रकारे त्याला पुढे नेऊन त्याची मांडणी आपल्याला करता आली पाहिजे, है ना. अवश्य करता आली पाहिजे. करा तुम्ही. आय कॅन अंडरस्टँड ऑल द इंट्रिकसीज दॅट आर इन्व्हॉल्व. होतंय बरेचदा. म्हणजे आम्ही एकदा मध्ये काम केलं होतं, असे इश्यू आले होते, पण त्यांनी लगेच अप्रुव्हल दिलं होतं. नाही, बिकॉज मेनी अ टाइम कसं होतं सर, गाईडलाईन माहित नसतं याला म्हणजे परमिशन घ्यायची. करेक्ट. नंतर मग ते स्टुडंट वर हे करून देतात की नाही तुम्हालाच माहिती परमिशन घेतली नाही. नाही, तुम्ही असं निवेदन द्या, होईल. हे लोक करतील.